Good morning, student. I am Yogendra Kumar from GL University Mathura. Today, I am going to discuss about strength of material, lecture 1, which is based on the relationship between elastic constant E, G, and K. E means Young's modulus, G means shear modulus, and K means bulk modulus. Okay. So actually, this subject is also taught by other three faculty members, which are भूपेंद्र कुमार सारस्वत, Mahendra Kumar Sani, Akashdeep Yadav sir. Okay, so now I am going to describe this topic. First of all, I have to knowledge about these relationships. What is the meaning of Young's modulus and what is the meaning of modulus of rigidity and what is the modulus, what is the relationship between, what is the meaning of bulk modulus. Okay, so first of all, Young's modulus. Young's modulus means it is also known as Hooke's law. According to this law, the stress is directly proportional to strain up to proportional limit, or within the elastic limit. So according to this figure, you can see the stress is directly proportional to the strain. यहाँ जो आपका स्ट्रेस है वो आपका स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. देर इज नो एनी टाइप ऑफ कर्व, इट इज इंडिकेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन. सो दैट रेंज और दैट लाइन इज also known as Hooke's law, and the relationship between stress and strain is known as Young's modulus. So we can say the ratio of stress and strain up to the elastic limit, up to the proportional limit or within the elastic limit is known as Young's modulus. Okay. Next one is modulus of rigidity, which is noted by capital G. It is the coefficient of elasticity of a shearing force, or it is defined as the ratio of shear stress Q to the shear strain. Okay. So shear modulus, it is noted by G. G will be equal to Q upon phi. So in this diagram you can see, if we are going to apply a force on a block like this, मैं कोई फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, सपोज दैट एफ फोर्स इज अप्लाई ऑन दिस, तो क्या होगा, इस फोर्स से आपका इस सरफेस पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, दैट स्ट्रेस विल बी नॉन एज शियर स्ट्रेस. और इस स्ट्रेस से हमारा जो इसमें चेंज आएगा, जो इसमें स्ट्रेन होगी, ये इसमें फाई आपको इंडिकेट कर रहा है. जो इसमें एंगुलर चेंज है, दैट एंगुलर चेंज इज नोटेड बाय फाई एंड इट इज आल्सो नोन एज shear strain. So we can say the relationship between shear stress and shear strain, and also known as the ratio between shear stress and shear strain, is known as modulus of rigidity. And last one is that bulk modulus, which is noted by capital K. It is the ratio between direct stress to the vertical strain of a material up to the elastic limit, or we can say within the elastic limit or up to the proportional limit. It is noted by K equal to P upon EV. EV means volumetric strain and P means direct stress which is applied on a object like this. Suppose that here we are going to apply various types of forces in all direction, in x direction, y direction and z direction, and the area and the volume of this object is V naught, and after the applying of forces it will be V naught minus del V. So the del V is the change in volume, and we can easily find out by which change in volume upon the original volume is volumetric strain, and the ratio between direct stress to the volumetric strain is known as bulk modulus. Okay, so by this formula we can easily find out the value of K. Okay, so now one thing is very important, that is note, that is unit of all elastic constant will be same. Unit of all elastic constant will be same. It may be Newton per mm square, MPa, GPa or
PA. Okay, so the unit of all elastic constant will be same. Okay, रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड जे, ई एंड के, तो हम यहाँ पर इसमें बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड के की। तो ई एंड के रिलेशन के लिए मैंने मान लीजिए आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम, दैट इज द डायग्राम विच इज सब्जेक्ट, दैट इज अ ऑब्जेक्ट विच इज सब्जेक्टेड टू three types of stresses. Number one is Px, number two is Py, and number three is Pz. Okay, which are acting on x, y, and z direction according to diagram. Let a cube ABCDEFGH is subjected to Px, Py, and Pz stresses in x and y and z direction. So if Px, Py and Pz are equal to P, यदि मान लीजिए आपका Px, Py, Pz आपका Px के इक्वल है या Px के इक्वल हैं, ठीक है, so that we can easily written as Ex will be equal to the Ey and equal to Ez. So it will be P upon E minus P upon Me minus P upon Me. Okay, so हमारे जो x का डायरेक्शन में या y डायरेक्शन में या z डायरेक्शन में जो आपका स्ट्रेन होगा, उस स्ट्रेन की वैल्यू, उस स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी इट विल बी P अपॉन E माइनस P अपॉन Me माइनस P अपॉन Me. तो यदि आफ्टर सॉल्यूशन इट विल बी P अपॉन E इंटू 1 माइनस 2 अपॉन M, 2 अपॉन Me, ठीक है, M हो गया 2 अपॉन M, ठीक है, P अपॉन E इंटू 1 माइनस 2 अपॉन M. तो ये हमारा क्या होगा, वो Ex, Ey और Ez तीनों डायरेक्शन में हमारा जो स्ट्रेन होगा ये होगा. अब मैं बात करूँ कंबाइंड स्ट्रेन की. If I am going to talking about combined strain, so it will be EV equal to del V upon V. It will be equal to that Ex plus EV plus Ez, Ey plus Ez. So it will be P upon E 1 minus 2 upon M into 3. तो हम इसे लिख सकते हैं 3P upon E 1 minus 2 upon M. ठीक है, that is the relationship for EV, मतलब EV मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए जो आपका रिलेशनशिप है इट विल बी 3P अपॉन E इंटू 1 माइनस 2 अपॉन M. ओके, यहाँ जो आपका E है दैट E मीन्स द यंग्स मॉडुलस एंड 1 अपॉन M मीन्स पॉइजन रेशियो. पॉइजन रेशियो इज नथिंग, इट इज द रेशियो बिटवीन लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ओके, यदि मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और सपोज दैट से करते हैं हम लोग से, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट में जो हमारा Px लगा हुआ है, इस Px से इसकी जो लेंथ में चेंज होगा तो वो तो हमारा हो जाएगा क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ठीक है, ये हमारा E हो जाएगा. मगर यदि इस Px की हेल्प से आपका इसके साइड में या इसके हाइट में या इसके विड्थ में कोई चेंज हो रहा है तो दैट विल बी लैटरल स्ट्रेन. ठीक है, इसे हम लोग यहाँ पर E A या E B से इंडिकेट करते हैं. ठीक है, तो अब ये जो आपका लैटरल स्ट्रेन होगा यही आपको इंडिकेट करेगा व्हाट विल बी द पॉइजन रेशियो. पॉइजन रेशियो इज नथिंग, इट इज द रेशियो बिटवीन लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ओके, तो अभी हम लोग यहाँ देखिए क्या देखे थे, यहाँ हम लोग देखे थे कि जो आपका ई वी का वैल्यू है वो क्या हो गया आपका P अपॉन E 1 माइनस 2 अपॉन M हो गया. और यहाँ हम जानते हैं वी नो दैट द K इज इक्वल टू, K मीन्स बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो वी कैन रिटन एज K इक्वल टू P अपॉन EV. ओके, सो नाउ हियर यू कैन easily derive the relationship between capital E and capital K. Okay, so like this, volumetric strain will be EV equal to 3P upon E 1 minus 2 upon M, and we know that K equal to P upon EV. So मैं यहाँ पर आपका जो वैल्यू है EV का, जो मैं आपका वैल्यू है EV का, EV की वैल्यू की जगह हम लोग यहाँ से EV की वैल्यू की जगह इसमें से जो EV का वैल्यू है तो क्या होगा आपका P अपॉन K होगा. और P अपॉन K को मैं रख दूँ कहाँ पर, इक्वेशन नंबर इसमें, यहाँ पर B, इक्वेशन नंबर B में. तो बाई यूजिंग द इक्वेशन नंबर B एंड बाई इक्वेशन नंबर C वी कैन रिटन एज P अपॉन K इक्वल टू 3P अपॉन E 1 माइनस 2 अपॉन M. ठीक है, तो यहाँ जो आपका P है वो P से P कैंसिल आउट हो गया आपका.
तो आफ्टर द कैलकुलेशन आउट ऑफ दिस इक्वेशन इट विल बी E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2/n, दैट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन E एंड K। ये आपका जो रिलेशन होगा वो किसका होगा, E और K का रिलेशन होगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग फाइंड करते हैं रिलेशन बिटवीन कैपिटल E एंड कैपिटल G। कैपिटल E मीन्स यंग्स मॉडुलस एंड कैपिटल G मीन्स शियर मॉडुलस, ओके। सो हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ ABCD, ठीक है। अब ABC डायग्राम को यहाँ दिया हुआ है। ABCD पर यदि मान लीजिए आपने कोई शियर स्ट्रेस लगाया Q, ये आपने शियर स्ट्रेस Q लगाया यहाँ पर, यहाँ लगाया और या यहाँ लगाया, ठीक है। तो ये दोनों हमारे शियर स्ट्रेस का एक प्रॉपर्टी होता है, ये इट विल बी द अपोजिट नेचर फॉर बोथ साइड। सो आपका जो बोथ दोनों साइड में क्या होगा, अपोजिट नेचर में होगा। सो बाय यूजिंग दिस अपोजिट नेचर ये क्या होगा आपका, इसमें जो चेंज आएगा दैट विल बी एंगुलर चेंज, और दैट एंगुलर चेंज इज नोन एज शियर स्ट्रेन, ठीक है। ये आपका क्या होता है, शियर स्ट्रेन होता है जो आपका एंगुलर चेंज आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर ए, a cube is subjected to shear stress Q due to which phi shear strain will produce, okay। So that surface ABCD change its position like AC1 ABC1 D1, okay। So it will be ABC1 D1, the change position will be AC1 D1 and B। So we can written as diagonal of AD, diagonal AD आप जो देख रहे हैं, तो डायगोनल AD में जो चेंज हुआ क्या हुआ, पहले AD आपका ये वाला था, अब आपका AD क्या हो गया, AD1 हो गया, ठीक है, AD1 हो गया। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ AD एंड वी नो दैट द इनिशियल लेंथ ऑफ AD इज कैपिटल AD। सो वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन AD लेंथ। तो AD लेंथ में यदि मैं बात करूँ आपका स्ट्रेन फाइंड करने की, तो इट विल बी AD1 माइनस AD माइनस AD अपॉन AD इक्वल टू AD1 माइनस AE। मैंने यहाँ पर AD को, ये AD आपका जो है उसको AE से लिख दिया है, ठीक है। AD को मतलब A से लेकर D तक का डिस्टेंस है, वो आपका A से लेकर E तक का डिस्टेंस लिख दिया। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे डायग्राम में, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका एक नॉर्मल डाला हुआ है D पॉइंट से, और वो आपका जो AD डिस्टेंस है इट विल बी इक्वल टू द AD डिस्टेंस, ओके। सो वी कैन रिटन एज AD equal to AE and also it will be ED1, ED मतलब ये आपका जो चेंज हुआ है दैट चेंज ED1 अपॉन AD, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, ठीक है। अब मैं ED1 की जो वैल्यू है, ED1 की वैल्यू जो है ये, और जो आपका AD की वैल्यू है ये, इसको मैं एंगल्स में चेंज करता हूँ। सपोज कीजिए कि हमारा जो एंगल है ये आपका देखिए, जब यदि आपका ये स्क्वायर है, यदि आपका ये स्क्वायर है या आपका ये क्यूब है, तो क्यूब का यदि यहाँ पर डायगोनल खींचा हुआ है तो इस डायगोनल का जो एंगल होगा इट विल बी 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ जब मैं मानता हूँ कि जब मैं शियर स्ट्रेस लगाता हूँ यहाँ पर, तो शियर स्ट्रेस लगाने पर उसमें माइनर चेंज होता है, ठीक है। ड्यू टू दिस माइनर चेंज एंगल विल बी, आई एज्यूम द एंगल विल बी इक्वल टू द 45 डिग्री, सो दैट वी कैन इजीली रिटन एज ED1 will be equal to DD1 cos 45, DD1 cos 45, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और सिमिलरली हमारा जो आपका AD का वैल्यू है, AD को मैं लिख सकता हूँ BD अपॉन साइन 45। तो आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ cos 45 एंड साइन 45 इट विल बी इक्वल टू 1/2, so that it will be 1/2 into DD1 upon BD, DD1 ये आपका DD1 हो गया, DD1 अपॉन BD। तो अब DD1 की जो वैल्यू है DD1, D से D1 अपॉन BD, तो ये क्या होगा आपका, एंगुलर चेंज हो रहा है फाई के इक्वल, तो वी कैन रिटन एज tan phi एंड tan phi आल्सो कैन रिटन एज tan phi इक्वल टू फाई। सो इट विल बी स्मॉल e मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको निकला हुआ है, स्मॉल e विल बी इक्वल टू 1/2 Q अपॉन G। तो Q अपॉन G मैंने यहाँ पर रिलेशन निकाल लिया है स्मॉल e के साथ। सो नेक्स्ट इज दैट वी नो दैट कैपिटल जो आपका यहाँ पर फाई है वो फाई को इक्वल रखा हुआ है मैंने, तो हम जानते हैं कि हमारा जो कैपिटल G होता है वो इक्वल टू होता है आपका Q अपॉन फाई के। तो यहाँ से फाई के वैल्यू क्या आ गया आपका, Q अपॉन G आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको फाई की जगह पर ये पुट कर दिया है इसमें। तो इट विल बी E इक्वल टू 1/2 Q अपॉन G, ठीक है। सो इफ मैंने सब कंसिडर
Q इक्वल टू P, यदि मैं मान लिया कि यहाँ पर जो आपका P फोर्स P स्ट्रेस है वो इक्वल आपका Q के हो जाए, ठीक है, यदि वो इक्वल हो जाए Q के, तो हमारा जो रिलेशन था वी नो दैट E इक्वल टू Q अपॉन E, तो हमारा रिलेशन था हुक्स लॉ वाला, वो क्या था, हुक्स लॉ का रिलेशन था आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से यदि मुझे स्मॉल ई निकालना हो तो स्ट्रेन निकालना हो तो इट विल बी स्मॉल ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू तो हमारा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि मटेरियल में कोई चेंज नहीं है। मैंने यहाँ पर P की जगह मैंने क्या कर दिया, Q रख दिया है, P की जगह क्या रख दिया मैंने, Q रख दिया है। तो अब मैं यदि E की वैल्यू को कंपेयर कराऊँ इसके साथ तो देखिए क्या होता है, एंड AD will be subjected to the tensile strain and BC will be subjected to the compressive strain। तो हमारा जो अब जब हम shear stress लगाएंगे तो हमारा जो AD है, AD में चेंज होगा आपका, कैसा चेंज होगा, AD में आपका चेंज होगा टेंसाइल चेंज होगा, और B आपका जो यहाँ पर जो BC है, ये जो स्ट्रेंथ है ये भी वाला BC, इसमें क्या होगा आपका, इस डायगोनल में आपका कंप्रेसिव होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन आपका इसमें होगा। तो ड्यू टू दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, और यहाँ पर आपका मल्टी डायरेक्शनली स्ट्रेन हो रहा है। तो जो AD में टोटल स्ट्रेन होगा, AD में टोटल स्ट्रेन होगा वो क्या करेंगे, हम दोनों को लेंगे, आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी लेंगे प्लस आपको वो स्ट्रेन भी लगना होगा जो लॉन्गिट्यूडिनल के साथ लग रहा है, दैट इज लैटरल स्ट्रेन। और लैटरल स्ट्रेन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ हम ऑलरेडी जब फोर्स इस पर लगा रहे हैं तो इसका जो आपका मेंबर है वो कंप्रेसिव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट विल बी Q अपॉन E प्लस 1 अपॉन M इंटू Q अपॉन E। तो इट विल बी रिटन एज Q अपॉन E 1 प्लस 1 अपॉन M। सो नाउ दिस स्ट्रेन विल बी इक्वल टू 1 upon 2 Q upon G. So by using these two formulae, in the formula number A and formula number V, or by using these two equations, equation number A and equation number V, we can easily written as 1 by 2 Q upon G equal to Q upon E 1 plus 1 upon M. So here we can cancel out the Q value of Q, we can cancel out the value of Q, and it will be E equal to 2G 1 plus 1 upon M, that will be the relationship between E and G। तो अब मुझे E and G का रिलेशनशिप मिला हुआ है, दूसरा मुझे मिला गया था E and K का रिलेशनशिप। तो by using these two equations, by using these two relationship, we can easily find out the relationship in these three terms E, G and K। So for relationship between E, G and K, तो हमारे जो फॉर्मूले थे आपका क्या था, जो रिलेशनशिप आपका था E और K का, वो था आपका E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 अपॉन M, और दूसरा आपका जो आपका रिलेशनशिप निकला है E एंड J में, दैट इज E इक्वल टू 2G 1 प्लस 1 अपॉन M। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू किसके इक्वल हैं, यंग्स मॉडुलस के इक्वल हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। सो वी कैन रिटन एज द इक्वेशन नंबर A इक्वल टू इक्वेशन नंबर V। तो बाई इक्वेटिंग दीज इक्वेशन इट विल बी 3K 1 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन M इक्वल टू 2G 1 प्लस 1 अपॉन M। तो यहाँ मैं इस 3K का मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये 3K माइनस 2 इंटू 3K अपॉन M, इट विल बी इक्वल टू 2G प्लस 2G अपॉन M। ठीक है, सो नाउ वी कैन अगेन सॉल्व इट। तो इट विल बी 2K माइनस 2G, ये आपका क्या हो जाएगा, 2K माइनस 2G को मैंने यह वाला 2G है उसे इधर ले लिया, ठीक है, और ये इस वाले टर्म को पूरे को मैं इधर ले गया, ठीक है। जब मैं इधर ले गया तो क्या हो गया आपका 3K माइनस 2G इक्वल टू 2G अपॉन M प्लस 6K अपॉन M, क्योंकि मैंने M वाले टर्म एक तरफ ले लिया और बिना M वाले टर्म एक तरफ ले लिए। तो आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इट विल बी 3K माइनस 2G इक्वल टू 1 अपॉन M 2G प्लस 6K, ओके, एंड it will be the value of 1 upon M equal to 2G minus 3K minus 2G upon 2G plus 6K. So it will be the equation of 1 upon M, and we can easily find out the value of E, G and K by using of E, G and K we can easily find out the value of 1 upon M, okay। 1 upon M मतलब पॉइजन रेशियो का वैल्यू आपको फाइंड करना हो K और G की हेल्प से, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो मैं बात करूँ दोबारा से रिलेशनशिप फर्स्ट की, तो रिलेशनशिप फर्स्ट आप जो देख रहे थे यहाँ पे ये वाला E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 अपॉन M। तो यदि मैं यहीं पर
ये 2/m है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/m। तो ये 1/m का वैल्यू यहाँ से उठाया मैंने, ये वाला 1/m का वैल्यू उठाकर मैं इसमें पुट कर दूँ तो क्या होगा, इक्वेशन आपका इस तरीके का हो जाएगा। इक्वेशन आपको इस तरीके का हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो 3k का क्या करूँगा मैं, सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर ये 2 आपका जो है ये वाला 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा g + 3k हो जाएगा। अब इसको मैं इंटरनल सॉल्यूशन कर लूँ, इसका इंटरनल सॉल्यूशन करने के बाद मेरा क्या मिलेगा, आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ वी गेट द वैल्यू विल बी इक्वल टू E = 3 × 3 मतलब मीन्स 9gk अपॉन g + 3k। तो इट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन E g एंड k। ओके, और इसका जो सॉल्यूशन आपको देखना है तो दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डेरिवेशन। इट विल बी E = 3k 1 - 2 3k - 2g अपॉन 2j + 6k। तो यहाँ 2 मैंने कॉमन लिया दोनों से, तो इट विल बी 2 × g + 3k। ठीक है, तो 2 से 2 मेरा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद मैं यदि इसे सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा g + 3k, यहाँ आ जाएगा 1 की जगह पर, तो g + 3k हो गया आपका, g + 3k हो गया, माइनस यहाँ पर ये साइन आपका है -3k + 2g, ये आपका जो माइनस है ये वाला अंदर वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3k से 3k आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी 2g + g मीन्स 3g। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करूँगा तो 3k × 3g क्या हो जाएगा आपका 9kg हो जाएगा, 9kg अपॉन g + 3k। इट विल बी द इक्वेशन ऑफ E = 9gk अपॉन 3k + g। तो ये आपको जो इक्वेशन निकला है इस तरीके का, इस इक्वेशन को हम लोग वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे आपका E/G/K के रिलेशन का। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज के लिए शायद आई होप आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा और आप E/G एंड K का रिलेशनशिप तरीके से सीख गए होंगे। एक बार आप नोट डाउन करें उसे और तरीके से सीखें, वीडियो को पॉज कर लें बीच में, और जिन लोगों ने वीडियो देखा है इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।